हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Silent feature of 73 amendment. There is the most important silent feature of 73. There is amendment. The 73 amendment to the Constitution carried in the 1992 made by statutory provision for the establishment empowerment of functioning of Panchayati Raj institution. There is a formation of 1992. There is a 73 articles here, and there is a functioning of the Panchayati Raj institution. As some provision of the amendment are binding on the state, while the other has been left to be decided by the respective state legislatures at their is the discretions. The silent feature of the amendment are flowing here. The first, there is some of compulsory requirement for the new law are here. The organization of the Gram Sabha. The organization of Gram Sabha, and next here, the creation of the three-tier Panchayati Raj structure at the Jilla, block and village level. There is the most silent feature of the 73 amendment here. And next amendment is almost all the posts at all level to be filled by the direct election. And next here is a silent feature of 73 amendment here. A minimum age for the contesting election to the Panchayati Raj institution by 21 years. The next year, the post of chairman at the Jilla and block level should be filled by indirect election. There should be a reservation of the seat of scheduled caste. This is the most important point. Note down. There is a scheduled caste and scheduled tribes in their panchayat in the proportion of their population, and the women panchayat such as the 1/3 of seat. There is a 1/3 of seat is a reservation for the women of panchayatis, and there is the other is a reservation seat for the scheduled caste and scheduled tribes. The state election commission to be set up to the each state to the conduct election to be Panchayati Raj institution. The state election commission, and the next year the tenure of the Panchayati Raj institution is a 5 year, and if the dissolved earlier, fresh election to be held within the 6 month. A state of finance commission is a set up to the each state every 5 year, and please refer to be 74 amendment discussed above. And some of the provisions which are not be binding on the state but only our guidelines are the given voting right to be member of the central and state legislatures is in these bodies, and providing reservation for backward classes, and their Panchayati Raj institution should be given is a financial power in the relation to the taxes and the less fees etc. And the effort shall be made to make a Panchayati is a autonomous bodies. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है 73 संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। देखिए दोस्तों, 73 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 74 है। 74 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 73 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि 73वें संशोधन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। कहते 1992 में जो अधिनियम 73वीं संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और सशक्तिकरण और कार्य प्रणाली के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। इस संशोधन के कुछ प्रावधान राज्य के लिए जो है बाध्यकारी थे, जबकि अन्य के लिए संबंधित राज्य के विधायकों के विवेक पर छोड़ दिया गया। इस संशोधन की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। कहते हैं अगर देखा जाए इनकी विशेषताओं के ऊपर, तो कहते हैं नए कानून के लिए कुछ अनिवार्य आवश्यकता थी। पहली बात तो यही आता था कि ग्राम सभाओं का गठन किया गया। इसके रिगार्डिंग जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचों की रचना की गई। साथ में इसकी 73 की और विशेषता थी, वो थी सभी स्तरों पर लगभग सभी पदों के लिए सीधे चुनाव द्वारा भरना था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये हमेशा रहा है, तो ये इसकी विशेषता जरूर आपको समझना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई। जिला और ब्लॉक स्तर पर जो है अध्यक्ष चेयरमैन पद को जो है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरना, यानी जो चेयरमैन होगा वो डायरेक्टली नहीं चुना जाएगा, इनडायरेक्टली चुना जाएगा, यानी उसको जो है ब्लॉक स्तर पर जितने बंदे जीतेंगे उनके द्वारा जो है चुनने का प्रावधान किया गया।
पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किया गया, यानी जितनी जनसंख्या होगी उतने जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट जो रहेगा रिजर्वेशन करके रखा जाएगा। और पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो थी आरक्षित की गई, यानी महिलाओं को भी आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका दिया गया। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा, यानी अगर पंचायती राज में चुनाव होगा तो उसका जो है हाई कमीशन यानी चुनाव आयोग द्वारा ही चुनाव करवाई जाने की प्रावधान किया गया। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहेगा। यदि अवधि पूरा होने से पहले ही भंग हो तो चुनाव जो है 6 महीने के अंदर अंदर करवाना अनिवार्य बना दिया गया। कहते हैं प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो प्रत्येक 5 वर्ष में गठन करना रहेगा। तो ये सारी बातों को जो है यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई। कहते हैं कुछ ऐसे प्रावधान जो बाधाकारी नहीं थे परंतु केवल मार्गदर्शक के रूप में जो है 73 आर्टिकल्स में सम्मिलित किया गया विशेषताओं के रूप में। तो वो थे केंद्रीय और राज्य विधायकों को इन संस्थाओं को मत देने का अधिकार देना, यानी केंद्रीय और राज्य विधायकों को संस्थाओं में मत देने का अधिकार पूर्ण दिया गया। पिछड़े वर्गों की आरक्षण प्रदान की गई जो कि बहुत जरूरी थी, क्योंकि तभी जो है पिछड़े वर्ग आगे भी आ सकेंगे। और पंचायती राज संस्थाओं की टैक्स और शुल्क लगाने के संबंध में वित्तीय शक्तियां भी दी जानी चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं को स्वयं ही निकाय बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ये सभी बातों को जो है यहाँ पर मार्गदर्शन के रूप में सम्मिलित किया गया। So our next topic is the most important here, the composition of the panchayats. The panchayat raj system is established in the accordance with the 73 amendment and is a 3-tier structure based on the direct election at all the 3 tier, the village, intermediate and district. Expansion from the intermediate tiers is given to the small state having less than 20 lakh population. There is the most important point, the note down. There is the small state having less than 20 lakh population. Let mean that they have the freedom not be have to the middle levels of the panchayat. All members of panchayat are directly elected. And however, if a state is a decide, a member of the state legislatures and the parliament may be also be or represent in the districts and middle level of panchayat. There is the most important here. The middle level panchayat are generally known as a panchayat samiti, and provision has been to the made for the is an inclusions of the chairperson of the village panchayats in the block and district level panchayat. The provision regarding to reservation of the seat scheduled caste and scheduled tribes has been already been to mention earlier, and however it should also be noted that here that 1/3 of the total seat are reserved from women. And 1/3 women are the quota fixed of the scheduled caste and tribes. The reservation is also provided for the offices of chairperson, and the reserved seats are allotted by the rotation to the different constituencies and panchayat area. The state is a legislatures can be provided for the further reservation for the backward classes. Yeah, other backward classes means OBC in a panchayat. There is the most important here, and that what is a term? Their term is the next topic. The term is amounted provide to the continuously extensions of panchayat. The normal term of the panchayat is of 5 year. If a panchayat is dissolved is earlier, election are held within the 6 month. There is a provision for a state level election commission for the superintendence. A state legislature may be endowed and the panchayat with such as the power authorities as may be or necessary to the enable the panchayat as a become institution of the self-government at the grassroots level. And responsibility may be given to be them to the preparers of plans for the economical development and social justice. Chiefs of the economic development and social justice with the regard to the 29 important matters such as agriculture, primary and secondary education, health and sanitation, drinking water, rural housing and welfare to the weaker section, and social forestry and so forth may be made by them. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पंचायत की संरचना, देखिए 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय ढांचे वाली है और जो प्रत्येक सत्र के लिए सीधे चुनाव पर आधारित थी। ये 3 सत्र थे, गांव, मध्यवर्ती और जिला सत्र।
कहते हैं 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर की छूट दी गई थी। यानी 20 लाख से कम आबादी वालों को जो है इस बातों के लिए छूट दी गई थी। इसका अर्थ तक उन्हें मध्यवर्ती स्तर पर रखने की स्वतंत्रता थी। पंचायत के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये प्रावधान भी किया गया था। राज्य विधानसभा और संसद का भी जिला और मध्यवर्ती स्तर पर जो है प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था। ये भी इसमें प्रावधान किया गया था, यदि राज्य बदलना चाहे तो भी। मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को प्रायः पंचायती समिति कहा जाता था और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच को ब्लॉक और जिला स्तर के पंचायत में सम्मिलित करने के जो है प्रावधान किए गए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, परंतु यहाँ यह आवश्यक है कि कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया और इन कोटे में से 1/3 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षितता का प्रदान किया गया, नहीं आरक्षण किया गया इनको। और आरक्षित सीटों को अलग अलग पंचायत क्षेत्र के चुनाव क्षेत्र में बारी बारी से घुमाकर निश्चित भी किया गया। राज्य विधानसभाएं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी जो है अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया। यानी इसमें साफ हुआ जाहिर कि 1/3 जो है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों के लिए महिलाओं के लिए जो है सीट आरक्षित किया गया। देखिए ये प्रावधान करना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो जनजाति महिलाएं हैं वो आगे बढ़ के अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे। उसके पश्चात एक कार्यकाल, देखिए संशोधन पंचायत के निरंतर अस्तित्व का प्रावधान करता है और किसी पंचायत का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष ही होती है। इसी जनरली सी बात है। यदि कोई पंचायत पहले भंग होती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने की जो है प्रोविजन होती है। पंचायतों चुनाव करवाने और उनका निरीक्षण निर्देश एवं नियंत्रण एवं मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का प्रबंधन किया गया। यानी सारे इलेक्शन का जो है पूरे जो है इंतजाम जो है चुनाव आयोग द्वारा प्रबंधन की जाएगी, ये प्रावधान इसमें सम्मिलित थी। उसके पश्चात पंचायत की शक्तियों और दायित्व, देखिए राज्य विधानसभाएं पंचायतों की ऐसी शक्ति और अधिक दे सकती थी जो उन्हें तुच्छ मूल्य स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं बनाने के लिए आवश्यक हो। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए भी योजना बनाने का दायित्व सौंपा जा सकता था। लेकिन कहते हैं 29 महत्वपूर्ण विषय जैसे कि कृषि जो है प्राथमिक मध्यवर्ती शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य और सफाई, ग्रामीण आवास, कमजोर वर्गों का कल्याण और वन क्षेत्र इत्यादि एवं इस प्रकार के अन्य विषय पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना उनके द्वारा बनाई जा सकती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो है 73 के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी। आगे का जो दोस्तों टॉपिक रहेगा वो होगा पंचायती राज के 3 स्तर यानी 3 टायर और पंचायती राज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको देखना मत भूलना, वो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट ये रहती है कि अगर आप जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने का लक्ष्य भी आपको रखना है, और इसके लिए आपको ने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको जो है लगाना है 24 घंटे के लिए। देखिए कहते हैं जग भलाई, तभी कहते हैं अपना भलाई तो सब जान लेता है कर लेता है, लेकिन जग की भलाई भी जरूरी होती है। कहते हैं कुछ अगर हम भी खा रहे हैं तो कुछ हमें जीव जंतु को भी देना चाहिए। अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ये ज्ञान दूसरे बच्चों तक भी पहुंच जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए पहुंचाने का एक ही साधन है, व्हाट्सअप है, जहां पर आप इसको जो है व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा के दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप टॉपिक भी सर्च करोगे यूट्यूब पे तो त्रिपान स्टडी सेंटर का जो है रिसर्च पे नहीं आएगा, वहाँ पर वो वीडियो आएगा जो पहले से ही इसी नाम से मौजूद था। तो इसलिए अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है इसके वीडियो वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पर आपको त्रिपान स्टडी सेंटर के रिगार्डिंग सभी वीडियो जो है आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और इसका जो है आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं।